کلام خدا سے آج جو ہم سیکھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ یہ جو مسیح کی جو ولادت ہے، یہ جو ان سے ہمیں کیا پیغام اس سے ملتا ہے، کیونکہ بہت سارے بھائی جو ہیں وہ لا علمی کے باعث، ناسمجھی کے باعث شاید اس پیغام کو سمجھنے سے قاصر ہیں، وہ شاید اس پیغام کی گہرائی کو، اس کے بھید کو جان نہیں پائے۔ آج جو ہم سیکھیں گے کہ مسیح کی ولادت، جسم کی صورت اختیار کرنا، ہمارے لیے کیا پیغام جو ان سے وہ کلام خدا میں مہیا کرتا ہے۔ آپ کی حیرت کے لیے آج چند باتیں جو ان سے شاید اس سے پہلے آپ نے نہ جانی ہو، نہ سنی ہو، اور نہ ہی شاید اس کو پڑھا ہو۔ عمومی طور پر یہ ہم جانتے ہیں، سنتے ہیں کلام سنانے والوں سے کہ مسیح جو ہے آج سے 2000 سال قبل اس دنیا میں جو ان سے وہ آتے ہیں، لیکن کلام خدا جو ان سے اس بات کی نفی کرتا ہے۔ کلام خدا جو بیان کرتا ہے کہ مسیح اس دنیا میں 2000 سال قبل نہیں، بلکہ وہ کم سے کم 6000 سال قبل جو ان سے وہ ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور جو ظہور پذیر ہمیں کلام خدا بیان کر رہا ہے، وہ جو پہلی دفعہ جو ان سے اس زمین کے اوپر جو ظاہر ہوتے ہیں، وہ باغ عدن میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک عجیب شاید آپ کے لیے ہوگا، کیونکہ بہت سارے کلام سنانے والے وہ یہی بیان کرتے چلے آئے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ 2000 سال قبل اس زمین پر جو ان سے ان کی ولادت ہوئی ہے اور اس زمین پر وہ آتے ہیں، جبکہ کلام خدا ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ مسیح کم سے کم 6000 سال قبل اس زمین پر ان کا ظہور ٹھہرتا ہے۔ ہم اس کے اندر جو ان سے ہرگز آج کا جو موضوع ہے، خدا کا ظہور پذیر ہونا، مسیح کی ولادت، ہم دیکھیں گے کہ خدا کس طریقے سے ظہور پذیر ہو رہے ہیں، اور اسی سے ہم جو ان سے سیکھیں گے کہ کیا یہ مسیح کی ولادت کلام خدا میرے لیے کوئی پیغام رکھ رہا ہے، یا وہ روایتی جو ان سی جو ایک میلہ، جو ایک تقریب، جو تحائف کا تبادلہ، وہی جو ان سے صرف اس کے معنی جو دنیا میں رائج کیے گئے، وہ جو ان سے میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ٹھہرے ہیں۔ ہم جو ان سے اس موضوع کے اندر جو ہے مسیح کی ولادت، مسیح کا ظہور پذیر ہونا کو بالکل ایک نئے معنوں کے اندر جو ان سے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سوال جو ابھرے گا میرے اور آپ کے لیے، وہ سوال یہ ہوگا کہ مسیح کا ظہور، مسیح کی ولادت، کلام خدا مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیتا ہے۔ اس سوال کا جواب نہایت ہی سادہ، نہایت ہی سمپل، اور اس کا جواب کوئی لمبا چوڑا نہیں، کوئی مشکل، کوئی ٹیڑھا نہیں۔ واحد اس کا جواب جو مسیح کی ولادت، مسیح کا ظہور ہے، اس کا مطلب ہے کہ مسیح اس دنیا میں جو آ رہے ہیں، وہ اس دنیا میں نہ صرف پہلی مرتبہ
कंवारी से उनका जन्म ठहरा है और मसाया जो है इंसानी लबादा ओढ़कर हमारे दरमियान रहने के लिए आते हैं। आज के मौजू का मकसद, इस कलाम का पर्पस मसाया की जौन सी है बयान करना है कि मसाया पहली बार इस जमीन पर 2000 साल कबल नहीं, बैतलहम में नहीं, बल्कि 6000 साल कबल बागे अदन में उनका ज़हूर ठहरता है। हम आज जो ये तकरीब मनाते हैं, मसाया की विलादत की तकरीब, कुंवारी से पैदा होने की तकरीब, मसाया का ज़हूर पजीर होना, जिस्म उस बदन की सूरत में हमारे दरमियान ठहरना, जब भी आप देखते हैं कि कोई भी चीज जो कुदरत के अनहोनी हो, उसको हम जो उनसे मानने से इनकारी होते हैं। आज तक ना कभी किसी ने सुना, ना कभी ऐसा मुमकिन ठहरा कि कोई बदन इंसानी जिस्म का लबादा ओढ़ते हुए कंवारी से पैदा हुआ हो। लेकिन जब भी अनहोनी सुपर नेचुरल नेचुरल से कनेक्ट करेगी तो वो चीज नेचुरल में तब्दील हो जाएगी। अनहोनी का होनी से मिलाप जरूरी है उसके होने को। Supernatural needs to touch the natural to become unnatural. कलाम खुदा जब ये वाकया वकूअ पज़ीर होता है, जब अनहोनी होनी में तब्दील होती है, सुपर नेचुरल जैसे ही नेचुरल वे को टच करता है तो वो नेचुरल प्रोड्यूस करता है। और जब ये नेचुरल प्रोड्यूस होता है, अमूमी तौर पर जैसे सुपर नेचुरल नेचर को टकराता है तो आपके अंदर डर आता है, खौफ आता है, घबराहट आपको होती है। लेकिन आज इस पैगाम के जरिए से आसमान से आवाज आती है, फरिश्ते की मार्फत आवाज आती है कि डरो मत, डरो मत, क्योंकि ये जो सुपर नेचुरल आज नेचुरल से टकराया है ताकि नेचर में जन्म ले सके, आपके लिए ये खुशी का पैगाम है। आए हम लुकास रसूल की इंजील दूसरे बाब की 10वीं आयत में चलेंगे। हम लुकास रसूल की इंजील दूसरा बाब उसकी 10वीं आयत में चलते हैं तो कलाम खुदा मुझे और आपको पैगाम देता है, मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। एक खुशी का मौका है, एक खुशी का पैगाम है, एक खुशी की खबर है जो आसमान से आ रही है, जो फरिश्ता लेकर आ रहा है जमीन के रहने वालों के लिए। क्योंकि जमीन के ऊपर सुपर नेचुरल ने नेचुरल के साथ मिलाप करते हुए नेचर को जो सा है अपनाया है। और हमें कहा गया है कि डरो मत, घबराओ नहीं, ये तो तुम्हारे लिए खुशी की बिशारत है कि आसमान का बाशिंदा जमीन पर रहने के लिए आ गया। और ये सिर्फ उन गडरियों के लिए नहीं। अगर आप दूसरे बाब की 10वीं आयत को गौर से पढ़ें तो वहां पे कलाम खुदा बयान कर रहा है, लिखा है
मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। ये बिशारत, ये पैगाम, ये खुशी का पैगाम है। और कहा गया है कि खुशी में जो है वो दूसरों के साथ खुशी मनाओ। और लिखा है कि ये खुशी की बिशारत जो दी जा रही है वो सारी उम्मत के वास्ते। मेरे कुछ भाई जो कलाम खुदा की इस खुशी की बिशारत को आपसे छुपाना चाहते हैं, आपसे मख्फी रखना चाहते हैं, आसमानी पैगाम को आपसे जो उनसे वो दूर करना चाहते हैं, वो आपसे कहते हैं कि आपको तो ये हुक्म दिया ही नहीं गया। पैगाम किस चीज का नाम है? आपको पैगाम मिलता है तो जब तक उसके अंदर हुक्म का लफ्ज मौजूद नहीं होगा, क्या वो आपके लिए माने नहीं रखेगा? क्या ये जो पैगाम दिया जा रहा है, क्या वो गडरियों के लिए माने नहीं रखा? क्या गडरियों ने उस पैगाम को हुक्म का वर्ड ना होने की वजह से रद्द किया, या उस पैगाम को कबूल करते हुए उस पैगाम की पैरवी की? आज मुझे और आपको ये बताया जाता है कि हुक्म मौजूद नहीं, तो पैगाम किस चीज का नाम है? आपको आपके वालिदैन, आपके उस्ताज़ा पैगाम जो देते हैं, तो क्या आप उस पैगाम की पैरवी नहीं करेंगे? आपको शादी का इनविटेशन कार्ड आता है, क्या उसके अंदर हुक्म लिखा होता है जो आप शादी अटेंड करने पहुंच जाते हैं? क्या किसी तकरीब का जो इनविटेशन आता है, क्या उसके अंदर हुक्म का वर्ड मौजूद होता है? क्या उसके अंदर कमांडमेंट वर्ड लिखा होता है जो आप उस तकरीब में शामिल होने के लिए रवाना हो जाते हैं? सोचिए और अपने आप को टटोलिए। आसमान से पैगाम आया है, आसमान से बशारत आई है, और यह बशारत कहा गया है एक उम्मत के लिए नहीं, बनी इस्राएल के लिए नहीं, सारी उम्मत, ऑल नेशंस, जिसमें बनी इस्राएल प्लस नॉन इस्राएलाइट्स मौजूद हैं। और ये कहा गया होगी सिर्फ आज की कौमों के लिए नहीं, बल्कि ये रहती दुनिया तक इस बशारत की खुशी मनाई जाएगी। कलाम खुदा आपको बता रहा है कि ये जो ज़हूर हो रहा है, ये जो सुपर नेचुरल नेचर से मिलाप कर रहा है, उसकी बशारत दी जा रही है, उसका पैगाम दिया जा रहा है, और वो पैगाम सारी दुनिया को, रहती दुनिया तक दिया गया है। इस पैगाम को हम देखेंगे, इस बशारत को देखेंगे कि ये क्यों खुशी की बशारत है, ये क्यों कहा गया है कि खुशी की बशारत। हमने पढ़ तो लिया, हमने सुन लिया, हमने जान लिया कि ये खुशी की बशारत है, लेकिन इसमें खुशी कहां पर है? आज हम इसी को देखेंगे। हम इसी को देखेंगे कि फरिश्ते ने ये क्यों कहा कि ये खुशी की बशारत है। हमने ये तो जान लिया कि ये सारी दुनिया के लिए है, हमने ये तो जान लिया कि ये रहती दुनिया तक है, हमने ये तो जान लिया कि ये बशारत जौन सी है, ये हुक्म जौन सा है, ये मेरे और आपके लिए है। लेकिन मुझे इस हुक्म के अंदर जो खुशी करने को कहा गया है, उसको जानना होगा कि खुशी मुझे क्यों करनी है। कलाम खुदा हमें बताता है कि कोई ऐसा ज़हूर होना को है, कोई ऐसा ज़हूर हुआ है जिसकी मुझे खुशी मनाने को कहा जा रहा है। मैं उस ज़हूर की तलाश में हूं, मैं उस खुशी की तलाश में हूं, उस पैगाम को महसूस करना चाह रहा हूं, जानना चाह रहा हूं। ये हरगिज और हरगिज महज जो मैंने और आपने, जो हम सब ने महज इसको कुंवारी से जन्म लेने तक जौन सा है वो महदूद कर दिया था, ये सिर्फ कुंवारी से जन्म लेने तक की खुशी नहीं थी। ये ऐसा
वाकया नहीं था कि सिर्फ कुंवारी से पैदा होने की खुशी मनाई जाती, बल्कि इसके अंदर कोई ऐसा पैगाम दिया गया था, कोई ऐसा भेद पिन्हा रखा गया था जिसके लिए कहा गया था कि आपको खुशी मनानी होगी। हमें उस भेद को खोजना होगा, उस भेद की तलाश करनी होगी। हम पुराने अहदनामे में देखते हैं, पुराना अहदनामा बयान करता है, मसाया को बयान करता है, मसाया के बारे में पेशन गोइयां जो उनसे बयान करता है कि वो मसाया जो इब्तिदा से है, जो अज़ल से है, उसका ज़हूर एक कंवारी से ठहरेगा। मुझे ये जानना है कि ये क्यों जरूरी था, ये क्यों जरूरी था कि वो कंवारी से जिस्म की सूरत में आए। हम इसको आगे चलकर सीखेंगे, क्योंकि हमें एक लगी बंदी जौन सी है वो स्टोरी सुना दी गई और हमने भी जुस्तजू नहीं की, हमने भी नहीं जाना कि इस भेद के अंदर जो खुशी का पैगाम है वो क्यों है। बहुत सारे नाकदीन वो ये कहते हैं कि इन अनाजील के अलावा जो पहली 4 अनाजील हैं, मत्तिया रसूल की इंजील, मरकस रसूल की इंजील, लुकास रसूल की इंजील और यूहन्ना रसूल की इंजील के अलावा मसाया की आमद को बयान नहीं किया गया, और पौलुस रसूल ने इसको क्यों जौन से इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। आए हम आज देखेंगे कि पौलुस रसूल ने मसाया की ना सिर्फ पहली आमद बल्कि दूसरी आमद का भेद बयान किया है। पौलुस रसूल ने उस खुशी के भेद को बयान किया है, वो खुशी का भेद जो हमने कलाम खुदा के अंदर से देखा, जो हमें सिखाया गया कि ये खुशी की बशारत लुकास रसूल की मार्फत हमें पहुंची। आए हम दूसरा तिमोथियुस पहले बाब में चलेंगे। दूसरा तिमोथियुस पहला बाब उसकी 8 से 10वीं आयत में आते हैं। कलाम खुदा हमें क्या सिखाता है? दूसरा तिमोथियुस पहला बाब 8 से 10वीं आयत यूं बयान करती है, बस हमारे खुदावन की गवाही देने से और मुझसे जो उनका कैदी हूं शर्म न कर, बल्कि खुदा की कुदरत के मुआफिक खुशखबरी की खातिर मेरे साथ दुख उठा, जिन्होंने हमें नजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादा और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यहोवा में हम पर अज़ल से हुआ। खुदा का फजल, खुदा का एट्रीब्यूट, खुदा का करैक्टर, खुदा की खुसूसियत सिर्फ अज़ल से जौन सी है किस तरीके से हो रही थी? मसाया के वसीले से। पौलुस रसूल बयान कर रहे हैं। आए हम 9वीं आयत को दोबारा से देखें। जिन्होंने हमें नजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादा और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यहोवा में हम पर अज़ल से हुआ, इब्तिदा से हुआ, बागे अदन से हुआ। 10वीं आयत को गौर कीजिएगा। मसाया की पहली आमद की पेशन गोई का भेद जौन से पौलुस रसूल बयान करते हैं। वो फरमाते हैं, मगर अब हमारे मुनज्जी मसीह यहोवा के ज़हूर से जाहिर हुआ वो खुदा का फजल, जो खुदा का फजल इब्तिदा से बागे अदन से मिस्र की गुलामी में
अब्राहम पे, यिसहाक पे, याकूब पे, मोशे पे, बनी इस्राएल पर होता रहा, दाऊद नबी पे होता रहा, तमाम अंबिया पर होता रहा। अब खुदा ने अपने आप को मसाया के वसीले से जाहिर कर दिया। ये है वो खुशखबरी का भेद। मगर अब हमारे मुनज्जी मसीह यहोवा शाही के ज़हूर से जाहिर हुआ। खुदा का फजल जो सा था, खुदा अपने फजल को इस बदन के अंदर ले आया, और इसलिए फरिश्ते ने पैगाम दिया कि ये तुम्हारे लिए खुशी की बशारत है जो कि सारी दुनिया के वास्ते होगी। मगर अब हमारे मुनज्जी मसीह यहोवा शाही के ज़हूर से जाहिर हुआ, खुदा जाहिर हो रहे हैं मसाया के वसीले से, उस बदन के वसीले से जो कुंवारी से जौन से जन्म ले रहा है, जिन्होंने मौत को नेस और जिंदगी और बका को उस खुशखबरी के वसीले से रोशन कर दिया। मुझे और आपको कहा जाता है कि मेरे और आपके लिए ये खुशी का पैगाम बेमाने है। ये इसलिए गर्दाना गया बेमाने क्योंकि कलाम सुनाने वालों ने अपने आप को महदूद कर दिया। उन्होंने ये तो बशारत दे दी, उन्होंने लुकास रसूल की इंजील के दूसरे बाब की 10वीं आयत तो बयान कर दी, लेकिन उसके अंदर के खुशी के भेद को बयान ना कर पाए। पौलुस रसूल बयान करते हैं। जब हम 10वीं आयत को देखते हैं, मैं इसको इंग्लिश में जब पढ़ता हूं 2 टिमोथी 1:10 वर्ड्स को, तो वहां पे लिखा है, बट नो रिवील्ड by the appearing of our Savior Yahweh Messiah, who indeed abolished death and brought life and incorruptibility to light through the good news. That is the good news. ये है वो खुशी की बिशारत। और कैसे हुई है ये खुशी की बिशारत? रिवील किया गया है, जाहिर हुआ है, ज़हूर हो रहा है। और ज़हूर के लिए जो यूनानी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो यूनानी जुबान का लफ्ज G5319 है, और ये फानी राओ है। और फानी राओ G5319 का मतलब है जाहिर होना, ज़हूर होना। खुदा जाहिर हो गया उस बदन के जरिए से, मसाया के वसीले से। ये थी वो खुशखबरी। नॉट रिवील्ड बाय अपीयरिंग, खुदा ने अपने आप को जाहिर कर दिया जिस्म की सूरत में। और ये जो अपीयरिंग के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है यूनानी जुबान में, वो एपिफानीस है, जो कि ग्रीक का स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस 2015 है, G2015। इसका मतलब है मैनिफेस्टेशन, एपिफानीस, ब्राइट, वो जलवा। खुदा का ज़हूर जब हुआ तो खुदा का जलवा जौन सा है इस दुनिया में उस बदन के वसीले से हमारे दरमियान ठहरा। इसीलिए आया है यूहन्ना रसूल के पहले बाब की 14वीं आयत में, और हमने खुदा का ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। हमने बेटे का ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। पौलुस रसूल मसाया की दोनों आमदों को बयान करता है। वो लोग जो आपको ये कहते हैं कि इन चारों अनाजील के अलावा और कहीं नहीं, पौलुस रसूल ने इन चारों अनाजील से ज्यादा बयान किया है। रब्बे कुदूस ने चाहा तो इस सवाल को इतना गहराई से हम सीख सकते हैं कि इसी के ऊपर आपके घंटों सरफ हो जाएंगे कि पौलुस रसूल ने मसाया को बयान कैसे किया है। और शरीयत के ना मानने वाले कहते हैं कि पौलुस रसूल ने मसाया और खुदा को
جدا کر دیا، مسیح کی شریعت اور خدا کی شریعت میں فرق کر دیا۔ یہ دونوں فرقے کلام خدا سے دور ہیں۔ پالوس رسول پہلی آمد بیان کرتے ہیں جو کہ بیت الحم میں ٹھہری، اور دوسری ان کی آمد جو ان سے وہ بیان کرتے ہیں جب وہ بادلوں کے ساتھ آئیں گے، جب وہ عدالت کرنے آئیں گے، جب وہ میرے اور آپ کا فیصلہ کرنے آئیں گے۔ میرے اور آپ کے لیے خدا کی طرف سے ایک پیغام ہے، آج کے لیے اور آنے والی زندگی کے لیے۔ آئے ہم تیتس کی کتاب دوسرے باب کی 12ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ تیتس 2 باب اس کی 12ویں آیت۔ کلام خدا جو ان سے آپ نے پڑھا دوسرے تیموتھیوس کے اندر کہ خدا کا فضل مسیح کے وسیلے سے ظہور پذیر ہو گیا، وہ خوشی کی بشارت، وہ خوشی کا بھید عیاں ہو گیا ایک کمواری سے۔ اور اب 11ویں آیت سے، تیتس 2 باب کی 11ویں آیت سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کے باعث ہیں۔ یہ وہ تھا خدا کا فضل جو ازل سے تھا، اور وہ اب ظاہر ہو گیا، ظہور میں آ گیا۔ تیتس کو بھی پالوس رسول دوسرے تیتس میں بیان کر رہے ہیں 11ویں آیت میں، اور 12ویں میں میرے اور آپ کے لیے پیغام دے رہے ہیں کہ اب جب یہ فضل ظاہر ہو گیا تو مجھے کیا کرنا ہے، اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دینوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہاں میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ ہے اس فضل کے ظہور کا پیغام کہ میرے لیے اور آپ کے لیے اس فضل کے ظہور کیا معنی رکھتے ہیں۔ کیوں خدا بدن میں مسیح کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں؟ تاکہ میں اور آپ بے دینی، دینوی خواہشات کا انکار کرتے ہوئے پرہیزگاری، راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ یہ ہے میرے اور آپ کے لیے پیغام اس ظہور کا جو اس دنیا میں ٹھہرا، جو بدن کی صورت اختیار کرتا ہے، کمواری سے پیدا ہوتا ہے۔ نہ صرف اس دنیا کے لیے بلکہ آئندہ کے لیے بھی پیغام ہے، اور وہ تیتس 2 باب کی 13ویں آیت بیان کرتی ہے، اور اس مبارک امید جو آنے والے وقت کا اشارہ ہے، یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یہوہ مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں، ان کی دوسری آمد کے بھی اب منتظر رہیں۔ یہ ہے وہ 2 آمدیں جو پالوس رسول نے بیان کی، اور آپ نے کہہ دیا بلا سوچے سمجھے، بلا کلام خدا کی طرف رجوع کیے، کہ پالوس رسول نے تو مسیح کی پہلی آمد کو بیان ہی نہیں کیا۔ پالوس رسول تو واضح طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ مسیح نہ صرف خدا کا وہ فضل جو ازل سے ہوتا رہا، جو قدیم سے ہوتا رہا، جو ابد سے ہوتا رہا، جو ان کی صفت تھا، جو ان کی ذات کا پرتو تھا، وہ آج مجسم ہو گیا، بدن کی صورت اختیار کر گیا اور میرے اور آپ کے درمیان میں رہا۔ اور یہی وہ خوشخبری تھی جو فرشتے نے آ کر دی، فرشتے نے آ کر دی تمام دنیا کے لیے، رہتی دنیا تک، وقت کی قید نہیں۔ پالوس رسول فرماتے ہیں جب مسیح بیت الحم میں پیدا ہوتے ہیں، جسم کی صورت اختیار کرتے ہیں، تو خدا کا فضل اس بدن کے ذریعے سے نمایاں ٹھہرتا ہے۔ خدا اس بدن کے ذریعے سے انسانوں کے درمیان میں رہنے کے لیے
आ जाते हैं, खुदा का ज़हूर होता है। ऐसे नहीं मजूसियों को सितारा दिखाई दिया, खुदा का ज़हूर होना था। जरूरी था कि वो खुदा जो आसमान, जो उनका तख्त है, जब वो बदन की सूरत अख्तियार कर रहे हैं तो आसमान में हलचल हो, आसमान में निशान दिखाई दे, और आसमान में निशान दिखाई दिया। और वो निशान जो सा है ऐसे नहीं लेकर चला, उसकी यही वजह थी कि वो निशान ये जाहिर कर रहा था कि खुदा इस बदन के जरिए से इंसान के अंदर रहने के लिए आ ठहरा है। इसीलिए वो निशान जो मसाया का सितारा कहता है, मजूसी उसे मसाया का सितारा गर्दानते हैं, वो उन्हें लेकर चलता है और ऐन उसी जगह ठहर जाता है जहां पे वो बदन जौन सा है मौलूद हुआ है। योखनान, पहला योखनान उसकी 3 से 5वीं आयत में आए। पहला योखनान में हम चलेंगे और उसकी हम देखेंगे 3 से 5वीं आयत में। कलाम खुदा हमें योखनान नबी की मार्फत भी बताता है, और तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुए थे कि गुनाहों को उठा ले जाएं, और उनकी जात में गुनाह नहीं। एक ही है जिसकी जात में गुनाह नहीं, एक ही है जो गुनाह से मुबरा है, एक ही है जिसने कभी गुनाह नहीं किया, और वो खुदा है, क्योंकि खुदा अपने अहकामात को नहीं तोड़ सकते। क्योंकि अगर खुदा ही अपने हुक्मों को रद्द करेंगे तो इंसान का हिसाब कैसे मुमकिन ठहरेगा। योखनान ने गवाही दी। योखनान ने पहला योखनान 3:5 में बताया, और तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुए थे। वो क्यों आए थे? क्यों बदन के अंदर खुदा ने अपने आप का इजहार किया, ज़हूर किया, जलाल अपना जो सा था उस बदन के जरिए से आश्कारा किया। इसलिए आश्कारा किया कि योखनान नबी आपको पहला योखनान 3 बाब की 5वीं आयत में उसकी वजह बता देते हैं। इसलिए आए कि मैं जो गुनाहों की दलदल में धंसा हुआ था, मैं जो गुनाहों से हटा हुआ था, मैं जो गुनाहों के बाइस मौत की दहलीज पे था, मेरी उस मौत को मुझ पर से उठा लें। वो फरमाते हैं, और तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुए थे कि गुनाहों को उठा ले जाएं, और उनकी जात में गुनाह नहीं। इसीलिए योखनान नबी पहले बाब में ही मसाया को बयान कर देते हैं। वो क्या बयान करते हैं? आए हम पहले बाब योखनान नबी की किताब, पहला बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत में आएंगे। योखनान पहला बाब 8वीं 9वीं आयत लिखा हुआ है। वो खुद तो नूर नाते योखनान अपने बारे में गवाही दे रहे हैं, मैं वो जलाल नहीं हूं, मैं वो जलाल का परताव नहीं हूं, मैं वो नूर नहीं हूं। और वो खुद तो नूर ना थे मगर नूर की गवाही देने को आए थे। हकीकी नूर जो दुनिया में, जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। योखनान नबी खुदा की राह तैयार करने के लिए आए थे, खुदा का पैगाम देने आए थे कि खुदा इस दुनिया में ज़हूर पजीर होने को है। काश मैंने और आपने इस खुशी को सिर्फ पढ़ा ना होता, सिर्फ सुना ना होता, बल्कि इसके भेद को कि मुझे खुशी मनानी क्यों है, इसकी जरूरत क्यों है, ये जो खुशी की बशारत है, ये इसका भेद क्या है, इसको जानने की सही की होती।
تو तब मुझे पता चलता कि ये खुदा जो अपना फजल अजल से करते रहे, मसाया की मार्फत, आज वो मसाया ही की मार्फत बदन की सूरत में इस जमीन पर इंसानों के दरमियान रहने के लिए आ गए। कलाम खुदा आपको बताता है कि मसाया खुदा का वो फजल है जो अजल से थे, जो बदन की सूरत में हमारे लिए जाहिर हुए ताकि हमारे गुनाहों को उठा ले जाएं, ताकि मैं जो है और आप उस मौत से बच पाएं जो मेरे और आपके गुनाहों के वसीले पर से हम पर सादर ठहरी। अगर आप ग्रीक कैथोलिक चर्च को देखें तो वो बपतिस्मे को, जो से मसाया के बपतिस्मे को गर्दानते हैं, खुदा का जलाल, खुदा का ज़हूर एक दफा मुमकिन फिर से ठहरता है। और आप देखते हैं जैसे मसाया बपतिस्मा लेने के लिए यरदन में उतरते हैं तो आसमान खुल जाता है और आसमान से आवाज आती है, खुदा का जलाल कबूतर की मानद उन पर उतरता है। और आसमान से गवाही आती है। ये गवाही मेरी नहीं, ये गवाही आपकी नहीं, ये गवाही किसी नबी की नहीं, ये गवाही आसमान खुल गया और कबूतर की मानिद आसमान में से, कबूतर की मानिद रूह कुद्दस उन पर आ ठहरता है और आसमान में से आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है, इनकी सुनो। क्या आज भी आप ये नहीं समझ पाए कि खुदा किस तरीके से इस बदन के जरिए से हम पर जौन से वो जाहिर हुए? कलाम खुदा आपको बार बार इशारे देता है, कलाम खुदा आपको बार बार सिखाता है। कलाम खुदा ने आपको दिखाया आसमान में रोशनी होती है, एक सितारा नमूदार होता है, वो सितारा मसाया का सितारा कहलाता है। उस सितारे को मजूसियों पर, गैर अक़वाम पर जाहिर किया जाता है। उस सितारे के वसीले से मजूसी उस बदन तक पहुंच पाते हैं। ये सितारा, ये रोशनी आसमान से इसलिए जाहिर होना लाजिम थी क्योंकि आसमान का खुदा जमीन पर रहने के लिए एक बदन के अंदर ज़हूर पजीर हुआ। कलाम खुदा हमें बयान करता है कि मेरा और आपका निजात दहिंदा, मेरा और आपका खुदा जिस्म की सूरत अख्तियार करता है, वो जमीन पर आ जाता है और एक बदन के अंदर अपने आप को हमारे दरमियान रहने के लिए ठहराता है। सवाल उभरता है, सवाल ये नहीं कि मसाया कंवारी से पैदा क्यों हुए, सवाल तो ये होना चाहिए था कि क्या कोई और जरिया मुमकिन था, क्या किसी और तरीके से वो पैदा होना चाहिए था। क्यों खुदाए कदूस ने, क्यों खुदा ने इंसानी जिस्म को अख्तियार किया? क्योंकि इंसानी जिस्म जौन सा है, कलाम खुदा बयान करता है कि हर इंसान गुनाह का
पुतला है। हर इंसानी बदन में गुनाह का तुखम मौजूद है। तो किस तरह खुदा ने एक जिस्म इख्तियार कर लिया, वो गुनाह आलूदा जिस्म जौन सा है उसके अंदर अपना इजहार कर दिया। हम आज तक महज इस सवाल के गिर्द घूमते रहे कि वो क्यों कुंवारी से पैदा हुए। सवाल तो ये बनता था कि और किस तरीके से वो पैदा होते। सवाल तो ये बनता था कि इंसानी जिस्म तो गुनाह का तुखम है, किस तरह मुमकिन था कि खुदा उस इंसानी जिस्म में जो गुनाह का तुखम है ज़हूर पजीर हो और गुनाह से मुबर्रा ठहरे। आए हम कलाम खुदा से इस सवाल को जानेंगे। मैंने इसीलिए कहा था कि शायद बहुत सारे लोगों ने, आपने, मैंने इस एंगल से कभी मसाया की वलादत को देखा ही ना हो, सुना ही ना हो, पढ़ा ही ना हो, जाना ही ना हो। हम महज रवायती किताबें, रवायती स्टोरियां, रवायती पैगामात के गिर्द अपने आप को घुमाते रहे। आए हम ये जाने कि मसाया का कंवारी से पैदा होना, जिस्म की सूरत अख्तियार करना, हमारे दरमियान रहना क्यों जरूरी था। हम देखते हैं कि खुदा का फजल, खुदा का नूर आसमान का तख्त छोड़ते हैं और एक जिस्म की सूरत अख्तियार करते हैं और वो जिस्म मालूद ठहरता है और उस जिस्म में खुदा का ज़हूर मेरे और आपके गुनाहों की माफी के लिए ठहराया जाता है। मसाया की वलादत खुदा का इस दुनिया में आने का ऐलान है और ये ऐलान कदीम उल अयाम से किया गया। इस ऐलान की पेशनगोइयां पुराने अहदनामे में ठहराई गईं। पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों 10वें बाब की 4थी आयत में बयान करता है। आए हम चलते हैं पहला अमाल की किताब, पहला कुरिन्थियों 10वें बाब की 4थी आयत। लिखा हुआ है, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह थे। पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों 10वें बाब की 4थी आयत में, बनी इस्राएल जब मिस्र की गुलामी से निकलती है, 40 साल तक बयाबान में भटकती है, अपने गुनाहों की वजह से बार बार खुदा की मुनकर ठहरती है, लेकिन खुदाए कदूस ने वादा किया था बाप अब्राहम से, यित्खाक से, याकूब से कि मैं आपकी नस्ल को ये मुल्क दूंगा। वो अपने वादे पर, अपने अहद पर कायम हैं। वो उनकी नाफरमानियों को दरगुजर करते हैं, वो उनके आगे आगे चलते हैं। दिन के वक्त बादल के सतून में और रात के वक्त आग के सतून में चलते हैं,
وہ چٹان جو ان کے آگے آگے چلتی ہے، پالوس رسول بیان کرتے ہیں کہ وہ چٹان جو ہے وہ مسیح تھے۔ کون کہتا ہے کہ مسیح محض 2000 سال قبل اس دنیا میں تشریف لائے؟ مسیح، کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے، ازل سے تھے، خدا کا فضل مسیح کے ذریعے سے ہو رہا تھا۔ یہ وہ فضل مسیح تھے، اسی فضل کے باعث بیابان سے بنی اسرائیل کو نکالا گیا، اسی فضل کے باعث مصر کی غلامی سے نکالا گیا، اسی فضل کے باعث پہلا کرنتھیوں 10 باب کی 4 آیت بیان کرتی ہے کہ وہ چٹان جس میں سے انہوں نے پانی پیا وہ مسیح تھے۔ اور اسی کو آپ خروج کی کتاب 17 باب کی 6 آیت، گنتی 20:11، زبور 78:15 اور 105:41 کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس چٹان کو جس چٹان میں سے بیابان میں سے پانی پیا گیا۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح جو ہیں اگر اس چٹان میں ہیں، اگر مسیح کا ظہور جو ہے جلتی جھاڑی میں ہے، اگر مسیح کا ظہور جو ہے وہ آگ کے بادل کے ستون میں ہے، اگر مسیح کا ظہور شروع سے ہے، ازل سے ہے، تو آج جو یہ بدن ہے اس میں بھی مسیح ہی کا ظہور ہے۔ وہ مسیح جو خدا ہیں، ان کا ظہور مسیح کی صورت میں ممکن ٹھہر رہا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں یعقوب کو، تو یعقوب کی زندگی میں 2 اہم واقعات ہم دیکھتے ہیں۔ ایک واقعہ پیدائش 28 سے 32 باب میں آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو یہ دونوں واقعات ملیں گے۔ ایک واقعہ جب وہ اپنے بھائی سو سے بھاگتا ہے اور اپنے ماموں لوان کی طرف جاتا ہے، اور دوسری بار جب وہ لوان سے جو ان کے اب سسر ہیں وہ بھاگتا ہے اور اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا ہے۔ 2 مرتبہ خدائے قدوس جو ہے وہ ان کا ظہور ممکن ٹھہرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب 48 باب کی 16 آیت کے اندر، پیدائش کی کتاب 48 باب اور 16 آیت، کلام خدا ہمیں یوں بیان کرتا ہے، پیدائش 48:16، کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور وہ فرشتہ جنہوں نے مجھے سب بلاؤں سے بچایا ان لڑکوں کو برکت دیں، اور جو میرے اور میرے باپ دادا ابراہم اور جٹخاک کا نام ہے انہی سے یہ نامزد ہوں اور زمین پر نہایت کثرت سے بڑھ جائیں۔ وہ جو فرشتہ ہے جس کا ظہور ہوتا ہے وہ مسیح ہیں جو زمین پر جن کا ظہور ٹھہرتا ہے۔ مسیح کبھی بھی محض 2000 سال پہلے نہیں آئے، مسیح بار بار جون سا ہے، ازل سے جو ہے کلام خدا نے ہمیں سکھایا کہ وہ 6000 سال کم سے کم باغ عدن سے جو ہے اس کا ظہور ٹھہرتا ہے، اور وہ اب بدن، وہ فضل جون سا ہے جو فرشتے کی صورت میں ظاہر ہوتا تھا، اب وہ بدن کی صورت میں جون سا ہے، ایک کمواری سے پیدا ہوتا ہے اور وہ بدن جون سا ہے ہمارے درمیان ٹھہرنے آتا ہے۔ سوال ابھی تک وہی ہے کہ یہ بدن اختیار کرنا
क्यों जरूरी था। इस सवाल को जाने बगैर आपको ये नहीं समझ आएगी कि मुझे उस खुशखबरी की बशारत क्यों दी गई, मसाया का बदन अख्तियार करना मेरे लिए क्या माने रखता है। हम देखते हैं पैदाइश 22वें बाब, हम इससे थोड़ा पीछे चलते हैं याकूब से, और हम पैदाइश 22वें बाब की 11वीं आयत में आते हैं, और वहां पे हम देखते हैं कलाम खुदा हमें अब्राहम के मुतालिक बताता है। हमें पैदाइश 22:11 के अंदर मिलता है, तब यहोवा के फरिश्ता ने उन्हें आसमान से पुकारा, आए अब्राहम, आए अब्राहम। उन्होंने कहा, मैं हाजिर हूं। ये वही हैं जो पुकार रहे हैं, जिनका ज़हूर हो रहा है, उस कुंवारी से ज़हूर हो रहा है, उस बदन के अंदर ज़हूर हो रहा है। कलाम खुदा से हमने सीखा कि मसाया का ज़हूर अज़ल से है, और 2000 साल पहले महज अब वो कुंवारी से मालूद ठहर रहे हैं। पर क्यों जरूरत है इस बदन को इख्तियार करने की। आए हम देखें पहला कुरिन्थियों 11वें बाब की 3री आयत में। पहला कुरिन्थियों 11वां बाब और 3री आयत, ये अमूमी तौर पर बहुत सारे लोगों ने सर पर ओढ़नी के बारे में जौन सी है आयत इसको जांचा होगा। आज हम इसका एक और मफहूम जौन सा वो देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 11वें बाब की 3री आयत जौन सी बयान करती है, ये ऑर्डर ऑफ क्रिएशन है बेसिकली, क्योंकि हम इसको जौन से है वो ओढ़नी से जौन से है वो कनेक्ट करते हैं, और ओढ़ने के 4 वजूहात जौन सी हैं पौलुस रसूल ने बयान की हैं। एक सिर्फ वजह नहीं है। अगर आप हेड कवरिंग को कलाम खुदा से जांचेंगे तो 4 वजूहात जौन सी हैं पहला कुरिन्थियों 11वें बाब के अंदर मौजूद हैं, और उसमें से एक वजह ऑर्डर ऑफ क्रिएशन है, और ये पहला कुरिन्थियों 11वें बाब की 3री आयत इस ऑर्डर ऑफ द क्रिएशन को बयान करती है। लिखा है, बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। कलाम खुदा के अंदर जब हम इसको देखते हैं तो हम इसके अंदर जो उनसे पहला कुरिन्थियों 11वें बाब की 3री आयत के अंदर इस ऑर्डर ऑफ क्रिएशन को देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि जब ये क्रिएशन होती है, जब तख्लीक कायनात हो रही है, उस वक्त जो उनसा है जो औरत तख्लीक की जा रही है, हमें बताया गया कि औरत का सर मर्द है, और ये पैदाइश 3:16 के अंदर भी आप इसको देखते हैं। अब हम इसके अंदर जो उनसे है जो देखना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं, हमें कलाम खुदा के अंदर जब ये सीखने को मिलता है तो हम ये देखते हैं कि ये जो क्रिएशन हुई है, जो तख्लीक हुई है, ये बागे अदन में हो रही है, और बागे अदन में हम मसाया को तलाश करेंगे कि क्या मसाया बागे अदन में भी मौजूद है। हम अमूमी तौर पे मसाया को देखते हैं, मसाया को आखिरी आदम कहा गया है। पहला आदम बाबा आदम है, और पिछला आदम या आखिरी आदम जो उनसे मसाया को कहा गया। हमें यह देखना होगा कि जब पहला आदम बनाया गया तो उसकी तख्लीक कैसी की गई। इसकी तख्लीक को जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जो आदम जब बनाया जाता है तो आदम जोन से उसकी तख्लीक जो की जा रही है वो खुदा की शबीह पे की जा रही है। तो जो आदम है
जो पहला आदम है वो खुदा की शबीह पर है, उसमें खुदा का परतो है, उसके अंदर खुदा का अक्स है, उसके अंदर खुदा के करैक्टर्स हैं, उसको खुदाई सिफात से मामूर ठहराया गया है। उसको बेगुनाह करार दिया गया है क्योंकि गुनाह सरजद नहीं हुआ अभी तक। वो बदन गुनाह से मुबरा बदन है। हम जब इसको देखते हैं पैदाइश दूसरे बाब की 4थी आयत के अंदर, तो तख्लीक कायनात को हमें सीखने को मिलता है। पैदाइश 2 बाब और उसकी 4थी आयत, कलाम खुदा हमें बयान करता है। मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो मजीद और 5-10 मिनट तक रहे। पैदाइश 2 बाब 4थी आयत बयान करती है, ये है आसमान और जमीन की पैदाइश। जमीन और आसमान की पैदाइश हो रही है, तख्लीक हो रही है। और पैदाइश का मतलब है उससे आगे उसकी नस्ल का जिक्र होगा, आसमानी नस्ल और जमीनी नस्ल का। ये है आसमान और जमीन की पैदाइश जब वो खलक हुए, जब उन्हें तख्लीक किया गया, जिस दिन यहोवा खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। अब यहां पे हमें जो देखने को मिल रहा है कि जमीन और आसमान को खलक किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और जमीन और आसमान की पैदावार भी ठहराई गई थी। हम इसको उस नस्ल को जो जमीन की नस्ल है उसको हम 7वीं आयत में देखेंगे। कलाम खुदा हमें बयान करता है, और यहोवा खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। अगर आप 4थी आयत से 6ठी आयत तक देखें तो मोशे ने जैसे ये बयान किया कि आसमान और जमीन की पैदाइश हो रही है, फौरन बाद उस पैदाइश से नस्ले इंसानी का आगाज ठहराया। 7वीं आयत से जैसे ही जमीन और आसमान की पैदाइश का जिक्र खत्म करते हैं मोशे, वो नस्ले इंसानी, उस जमीन की नस्ल को बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि ये नस्ल का खुमार कैसे उठाया, ये किस तरीके से उठाया, खुदाए कुदूस ने उठाया। कैसे? और यहोवा खुदा ने जमीन की मिट्टी से, जमीन से, कहीं और से नहीं, क्योंकि जमीन की तख्लीक हो गई है और उसी तख्लीक में से उसकी नस्ल का होना जरूरी था। उसी जमीन में से उसकी नस्ल निकलनी थी। जिस तरह आज इंसान से इंसान की नस्ल निकलती है, हैवान से हैवान की नस्ल निकलती है, जमीन से जमीन की नस्ल निकाली गई। और यहोवा खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया, जमीन की नस्ल तैयार की और उसको इंसान कहा। और किया क्या? उसके नथनों में अपना दम फूंका, अपना करैक्टर डाला, अपनी रूह डाली, तब जाके वो मिट्टी जौन सी थी वो जीती जान ठहरी। इंसान की बुनियाद मिट्टी है, और इसीलिए जब वो मरता है तो मिट्टी में शामिल होता है। लेकिन खुदाए कुदूस ने
इंसान के अलावा जो और मट्टी की नस्ल बनाई उसे और तरीके से बनाया, और वो 18 से 20वीं आयत में बयान है, लिखा है, और यहोवा खुदा ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उनके लिए एक मददगार उनकी मानद बनाऊंगा। और यहोवा खुदा ने कुल दस्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाए कि देखें कि वो उनके क्या नाम रखते हैं। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चिपायों और हवा के परिंदों और कुल दस्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उनकी मानद ना मिला। किसी के अंदर तमाम जमीन की नस्ल, चाहे चरिंद चाहे परिंद, वो तमाम के तमाम जमीन की नस्ल से निकाले गए, लेकिन उनमें खुदा कुदूस ने अपना दम नहीं फूंका, वो उनकी शबीह पे नहीं थे। और यही वजह थी कि जो आदम को जब खुदा ने अपनी शबीह पे बनाया तो खुदा आदम की शबीह में जाहिर हुआ। अगर आदम खुदा की शबीह पर ना बनाया जाता तो खुदा कभी भी किसी भी सूरत, बदन की सूरत में मां मरियम से जन्म ना लेते, कोई और जौन सा तरीका अख्तियार किया जाता। ये था वो रीजन जिसकी बिना पर खुदा ने बदन इख्तियार किया, क्योंकि जिस बदन को जो पहला आदम तैयार किया उसे अपनी शबीह पर बनाया, और अब जरूरी था कि जब पिछला आदम आए तो वो इंसान की शबीह पर बनाया जाए। और कलाम खुदा इसीलिए मुझे और आपको ये पैगाम देता है लुकास रसूल की मार्फत, जब वो बदन जौन सा है वो मालूत ठहरता है, जब वो बदन जौन सा है वो वजूद में आता है, जब वो बदन जौन सा कुंवारी से जौन सा है खुदा का ज़हूर ठहरता है, तो फरिश्ता पुकार उठता है, डरो मत, क्यों डर रहे हो, तुम्हें भी तो खुदा ने अपनी शबीह पे बनाया था, आज खुदा इंसानी शबीह में आ गया है, डरो मत। ये तो तुम्हारे लिए खुशी का पैगाम है कि खुदा ने इंसानी शबीह इख्तियार कर ली, और ये पैगाम सारी दुनिया के वास्ते होगा। खुशी करो। और इसीलिए मुझे और आपको ये हुक्म है कि अपने खुदा के ज़हूर का हम नारा मारते हुए उस खुशी में ताबेदारी के साथ शामिल ठहर सकें और दूसरों को इस खुशी का पैगाम दे सकें। खुदा कुदूस आप सबको इस खुशी की बशारत में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।